Okay, so very good morning, everyone. Till yesterday we have learned up to exercise number 2, right? Exercise number 2 तक हम लोग ने पढ़ लिया है. तो अगर exercise up till exercise 2, if anyone having any doubts, quickly ask. Start your video, everyone. किसी का भी वीडियो ऑफ नहीं रहेगा. And quickly tell, जल्दी से बताएं if anyone having any questions, any problems, any doubt in understanding any particular question till exercise number 2. Today we are going to discuss further the third exercise. Okay, Anuraj, Priyanshu, no, very nice. Tripti also don't have. Deepika, no, very nice, very good. Okay, so moving further, the next exercise which we have, that is related to the multiplication and division, exercise number 3. Very important exercise, okay, which we have in page number 179. Why I am telling this exercise very important? Because from this particular exercise, questions asked in competitive exams and all, because this is the only chapter through which you can directly verify after seeing the number only that particular number is divisible by a number or not. Okay, तो ये भी हम लोग ने divisibility criteria जो है वो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था. So for that purpose I am telling it's very important chapter, and this chapter is multiplication and division. Okay. Multiplication and division. So this chapter multiplication and division started with the multiplication of a number with 100, thousands, 200, 300, 700, like that type of number. So for that case also, if you give one multiplication to a small kid or children who are not aware about so much of advanced process or so much of think about the multiplication, they will just do the multiplication as like they will write both the number and then multiply with all the numbers including zeros also. But you no need to multiply the zeros in case of that type of number. For example, if we are talking about the first question which we have, that is question number 1, that is asking fill in the blanks type of question is there all. So 235 you have to multiply by 200. So after multiplying with 200, what will be the answer? So in this case, some of the students used to multiply this and this, but that you no need to do. Simply you have to just multiply 2 with this much. Okay, तो 2 को अगर इतना से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपली आप देख सकते हो 200 2 टाइम्स में 400 हो जाएगा, एंड 3 मीन्स 6 एंड 5 मीन्स 10, सो 70. तो 470 हो जाएगा इसका. ठीक है, सो आप अगर मल्टीप्लाई भी करके देखते हो यहाँ पे 5 2 are 10, 0 1 कैरी, 3 2 are 6 plus 1 7 and 2 2 are 4. So 470 जो है इसका डबल हो जाएगा या मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, एंड 2 zeros are here, so you have to put 2 zeros. So this is how directly you have to do this type of multiplication. सिक्स में कर लीजिए. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सर, उसमें है ना बेंच रिकॉर्ड नंबर ऑफ, कर लीजिए. ठीक. So 235 multiply 200, so 47000. This is will be the answer. Directly we can write like this. Okay. Question number 2. Moving to the second question which we have. Okay. So in the second question it is 341 multiply 600. 341 multiply 600. So इसको मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स जस्ट यू नीड टू सिंपली मल्टीप्लाई बाय 6
सो 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सो 6 1 आर 6, 6 1 आर 6, 6 4 आर 24, 24 का 4 2 कैरी, ओके 6 4 आर 24 का 4 2 कैरी, ओके 6 3 आर 18, 18 plus 2 is 20, so 20, 2046, right? So 2046 and 20 will be from here, so 20 from here, so this much will be the required product, right? So directly इस तरह से हाँ 204600, 204600, इसको अगर आप लोग पढ़ने जाएंगे then it will be ones, tens, 100, ones, tens, 100, thousands, 10,000s, lakhs, 2 lakhs, 4,600. तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो. द रेस्ट ऑफ ऑल एज लाइक थर्ड, फोर्थ का हम लोग देखते हैं. फोर्थ वन इज स्लाइटली डिफरेंट. हियर इज 3 numbers are here. So 320, if you are multiplying with 25, then multiplying with 4. So what will be the product that you have to check it out? So here one simple method we will follow that you need to keep in mind. ऐसा नहीं है कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए और फिर आगे किए. आप यहां पे देखोगे सबसे इजी तरीका कौन सा मल्टीप्लिकेशन करने से होगा. सो यू हैव टू चेक इट आउट दैट 25 मल्टीप्लाई 4. सो हमें जब पता है 25 4 times is 100, राइट? तो पहले हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन को करेंगे. तो ये हो जाएगा हम लोग का 320 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4 is 100. So 100 will be equal to this much. So अभी इसको 100 से मल्टीप्लाई करना इजी है. 321 और 320 and 20. So 20. So this is what the answer will be. तो इस तरह से जो है हम लोग दिमाग का यूज करेंगे. We'll use how to find out the easiest way. In easiest way सबसे इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं. And according to that you have to do. It is not necessary कि simply अपने कैलकुलेटर यूज करके मल्टीप्लाई कर दिया या आंसर देख के मल्टीप्लाई कर आंसर लिख दिया. So you have to find out a shortest process, shortest steps, easiest steps how you can find out. So इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो है ट्रिक्स पता होना चाहिए कि what is the shortest way or easiest way to do this. ओके कभी कभी मैथ्स में वही होता है कि जब हम लोग को तरीका नहीं पता होता है तो वो डिफिकल्ट लगने लगता है या बन भी जाता है. तो इसको आप बना सकते हो इसे भी मल्टीप्लाई कर करके भी, लेकिन दैट विल टेक ए लॉन्ग टाइम एंड you no need to do that much. It will come that much only. This is the only answer will come if you multiply this with this and after then this. Okay, so this is how you can do these all questions. इस तरह से आप जो है सॉल्व कर सकते हो. आगे हम लोग बढ़ते हैं further. Okay, moving further, that is fifth question. Herein you have to simply tell the quotient and remainder. So fifth question is there, quotient and remainder. यहाँ पे भी आप अगर ध्यान दोगे, we have learned this topic in our during our this chapter discussion, that इस तरह से whenever you want to divide any number by 10, 100, thousands, this type of numbers, you no need to check by dividing. So very easily you can answer directly. So let us see how we can answer directly. For example, यहाँ पे जो number है that is 32572. So 32572 ये नंबर है, इसको 10 से डिवाइड करना है. You have to divide by 10 and you have to tell the quotient. आपको quotient बताना है and you have to tell the remainder also. So remainder and quotient आपको बताना है. तो अभी किसी को अगर नॉर्मल सिंपल स्टूडेंट्स को बताओगे, पूछोगे तो दे विल डिवाइड दिस एंड चेक, बट यू नो नीड टू डू दैट मच. क्यों आप लोगों को नहीं करना है? क्योंकि सिंपली जब भी इस तरह से केसेस होते हैं तो हम लोग का एक रूल्स है कि जब भी आप 1 को कोई नंबर से डिवाइड करते हो तो वही आएगा. तो 10 टाइम्स और 1 टाइम्स अगर आप देखोगे तो दिस मच, ये जो है दिस विल बी द क्वोशेंट एक्सेप्ट दिस 2.
ठीक है, क्योंकि अगर 10 टाइम्स को इतना से मल्टीप्लाई करोगे इट विल कम 32570 ये आएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द क्वोशेंट विल बी 3, 2, 5 and 7 because 3, 2, 5, 7 times 10 is equal to this much. Okay, and after then 2 will be the remainder. तो 2 हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहता है, अगर 100 से हो देन 100 से अगर हो देन यू हैव टू टेक 3 डिजिट्स ओनली लिविंग 2 डिजिट्स। तो ये दो जो है दिस विल बी रिमाइंडर। अगर 1000 से हो देन 3 डिजिट रिमाइंड करके करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ इट विल कंटिन्यू। तो वेरी सिंपली हमें देखना है कि अगर कोई भी नंबर होता है और इफ यू वांट टू डिवाइड दैट नंबर बाय 10 देन क्वोशेंट जो होगा दैट विल बी दिस मच अप टू लिविंग 1 डिजिट। एक डिजिट को छोड़ के बाकी जो है दोज ऑल विल बी इन क्वोशेंट एंड जो लास्ट डिजिट होगा वंस प्लेस नंबर जो होगा दैट विल बी रिमाइंडर व्हेन यू आर डिवाइडिंग बाय 10। जब 10 से डिवाइड कर रहे हो तो जो लास्ट डिजिट होगा वंस प्लेस का नंबर होगा दैट विल बी रिमाइंडर एंड रिमेनिंग डिजिट्स नंबर्स रिमेनिंग नंबर्स विल बी द क्वोशेंट। ओके, फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वन मोर नंबर एज लाइक 7, 2, 3, 4 9 7, 2, 3, 4, 9 डिवाइडेड बाय 10। चलिए बताइए इसका कितना होगा क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। बताइए जल्दी से इसका क्वोशेंट और रिमाइंडर कितना होगा। 7, 2, 3, 4, 9 डिवाइडेड बाय 10। जल्दी से बताना है विदाउट डूइंग। सो व्हाट विल बी द क्वोशेंट एंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर। क्विकली टेल। Simply you no need to divide, just you can tell directly. I can see here Divyanshi Raj has answered also. Anyone else? कोई और? अभिनव, अनुराज, दिव्यांशी वर्मा, हर्षराज, खुशी, दीपिका, पीहू, प्रियांशु, राजलक्ष्मी, तृप्ति, क्विकली आंसर। Tripti has also answered correctly. Very good. So simply we no need to do anything. We just need to check कि how many 4 digits are here. So these all 4 digits will be the quotient. Okay. So quotient will be equal to 7, 2, 3, 4 and this ones place number will be remainder. Okay. So remainder will be 9. Okay. So this is how for the remaining. अगर 100 से करना है तो 2 डिजिट छोड़ देंगे, 1000 से करना है तो 3 डिजिट छोड़ देंगे, बाकी इधर का लेफ्ट हैंड साइड का जो है क्वोशेंट हो जाएगा एंड रिमेनिंग जो होगा उधर का दैट विल बी द रिमाइंडर। ओके, चलिए हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू दिस। विदाउट डिवाइडिंग यू हैव टू टेल द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। बाकी डिवाइड करने जाओगे तो इट विल टेक टाइम, सो शॉर्ट प्रोसेस है। So this is how we are discussing first question only till now and let us suppose one question is there 3, 2, 5, 7, 4 3, 2, 5, 7, 4 3, 2, 5, 7, 4 divided by 100। So यहाँ पे आपको देखिए 100 से डिवाइड करना है, तो 100 से जब भी डिवाइड करना होता है तो 2 डिजिट आपको जो है छोड़ के बाकी जो होता है those all will be the quotient and 2 digits will be the remainder. Okay, whenever you are dividing with 100 तो इसका quotient जो है वो कितना हो जाएगा, quotient will be 325 and remainder कितना हो जाएगा, remainder will be 74। ठीक है, इसी तरह से अगर और भी एग्जांपल्स लें जैसे 7, 9, 6, 2, 8 इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 1000 से, बताइए जल्दी से व्हाट विल बी द क्वोशेंट एंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर इन दिस केस। 7, 9, 6, 2, 8 7, 9, 6, 2, 8 डिवाइडेड बाय 1000 है तो हमें 3 डिजिट छोड़ना है। ठीक है, जो भी आंसर दे रहे हो करेक्ट आंसर,
वेरी गुड, द प्रीवियस वंस। जल्दी से बताइए जो अभी वाला दिए हैं 79628 डिवाइडेड बाय 1000। दिव्यांशी वर्मा, ओके, राजलक्ष्मी, वेरी गुड, अनुभव, अभिनव, ओके। Yes, so in this case you have to just leave the 3-digit number for the remainder and this much of 2-digit will be the quotient. So यहाँ पे जो quotient हो जाएगा that will be 79 and जो remainder हो जाएगा that will be 628. So this is what the division we can do very easily, the number divided by tens, hundred, thousands and so on. Okay, moving to the next question. In question number 1, if anyone having any doubts quickly ask. कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है नहीं बन पाएगा और गलती हो सकता है या नहीं बना पाओगे, quickly write in chat box, write in message if any question you think which you want to discuss till question number 1 of this exercise. No, very nice, बहुत बढ़िया। So हम लोग अभी मूव करते हैं। अच्छा, 1 का ही और भी बहुत सारा क्वेश्चन पेंडिंग है, तो मूव करते हैं वो सारा क्वेश्चंस में। So same question is there up to 8, क्वेश्चन नंबर 8 तक सेम है। अब 9 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 which we have 956 multiply 1000 is equal to 9560 multiply how much? ओके, सो यहां पे आप देख सकते हो वेरी सिंपल क्वेश्चन इज गिवन कि दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन ही है। जस्ट यू हैव टू चेक इट आउट हियर, 956 and 1 0 is shifted here, तो रिमेनिंग 2 0 will be left here. So remaining 2 0 means यहाँ पे हम लोग का जो हो जाएगा that will be 100 only, right? तो 100 हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन हम अपने तरफ से देते हैं। 743 multiply 100 is equal to 7430 into how much? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। 743 multiply 100 is equal to 7530 multiply dash 743 प्रियांशु गुप्ता, कोई और? तृप्ति your answer is not correct. दिव्यांशी your answer is also not correct. Maybe you are giving the answer of first question. Yes, Rajlakshmi is correct. फर्स्ट वाला 100 होगा, लेकिन इसमें कितना होगा वो बताना है आपको। हाँ, खुशी, वेरी गुड। सो हाँ, whoever answer is 10 is absolutely correct answer, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 743 is here, 1 0 we have written here, so 1 0 is remaining, so that means here 10 will be remaining. Okay, so 10 will be the correct answer. Okay, इसी तरह से हमारा और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी है, वो आप बना लोगे अपने से, that I am sure about it. Okay, moving to the 11th question, let us see the 11th one. Here it is 64 divided by 8. 64 divided by 8 multiply 11 is equal to how much? So it's very simple कि 64 divided by 8. First you have to check how much will be the answer in this and then we will multiply with 11. So 64 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं, what will be the answer? 8 8 और 64, राइट? तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 11, देन इट विल बी 88। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 88, ठीक है? वेरी सिंपली 64 को 8 से डिवाइड किया हमने, 8 आया, 8 को जो है 11 से मल्टीप्लाई किया तो 88 आया, एंड दिस इज हाउ 88 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो टिल क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ फर्स्ट पोर्शन, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट हो, पूछें। उसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके लिए आप लोगों को एक बार डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है रिकैप्चुलेट करना पड़ेगा, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार फिर से समझना पड़ेगा।
तो चलिए एक बार हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिकैप्चुलेट करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो सबको ही एक बार डिविजिबिलिटी चैप्टर में आ जाएं और उसको निकाल लें जो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको, एंड टेल क्विकली व्हाट इज द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया टू चेक इट आउट द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। 2 से कोई नंबर जो है वो डिविजिबल जाएगा कि नहीं, उसका क्राइटेरिया क्या है चेक करने का। अगर आप लोग पेज नंबर 50 में आ जाओगे, पेज नंबर 50 में आप लोगों का डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो टेबल है और जो क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है विथ एग्जांपल्स। सो क्विकली टेक आउट एवरीवन पेज नंबर 50 एंड लेट्स स्टार्ट विद द 2। तो 2 का डिविजिबिलिटी चेक क्राइटेरिया चेक करने का क्या प्रोसेस है वो पहले समझते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, एक नंबर तभी डिविजिबल बाय 2 से होता है जब इफ द लास्ट डिजिट इज इवन और 0। तो कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इवन है और 0 है, 0 और इवन नंबर अगर है, लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस का नंबर पूछा जा रहा है, तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। तो यहां पे जो भी नंबर्स है एक बार चेक कर लें कि कौन सा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट इवन है या तो 0 है। जैसे कि नंबर जो है वो देख लेते हैं हम लोग, 480 है, तो 480 है, उसके अलावा 325 है, उसके अलावा 560 है एंड 2000 है। इस तरह से नंबर्स हमें दिया हुआ है। तो यहां पे सिंपली जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज इवन और 0। तो 3 नंबर यहां पे तो सिंपली है जो 0 है, ठीक है, 1 2 3, तो ये तीनों जो है डिविजिबल हो ही जाएगा। उसके अलावा इवन नंबर तो नहीं है, ठीक है, ये ऑड नंबर है 5, तो 5 जो है वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये 3 जो है these all 3 numbers will be the divisible by 2। तो 2 का जो डिविजिबिलिटी है ये तीनों क्राइटेरिया मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग अब जाते हैं डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 3 में। 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या बोलता है कि अगर जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसको टोटल करने के बाद the number is divisible by 3 if the sum of all its digit is divisible by 3। मतलब जितने भी डिजिट्स हैं उसका अगर सारा को जोड़ के वो 3 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, then it will be divisible by 3 if the sum, the criteria if the sum of the digits is divisible by 3। तो सम मतलब क्या होता है कि जैसे ये तीनों को जोड़ते हैं तो जितना होता है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाए, तो देखिए 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 जो होता है ये 3 से डिविजिबल जाता है, ठीक है, 3 4 are 12, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सम देखिए 5 + 2 is 7, 7 + 3 is 10, तो 10 हो रहा है, 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं होगा 3 का। ठीक है, देन 6 + 5 is 11, 6 + 5 is 11, 11 is also not divisible by 3, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 200 है तो 2 इसका सम करोगे 2 आएगा, इट विल ऑल्सो बी नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका अगर देखोगे सिंपली जो फर्स्ट है डिविजिबल बाय 3 से होगा और कोई भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके अलावा, फर्स्ट के अलावा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग 4th का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, चेक करें, तो देखेंगे क्या है। ठीक है, 4 का जो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या बोलते हैं, लेट अस सी कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by its rightmost 2 digit is divisible by 4। rightmost 2 digit का मतलब होता है राइट साइड से 2 डिजिट। तो राइट साइड से 2 डिजिट का अगर इसका बात करें, जैसे ये 2 है या ये 2 है या ये 2 है, इस तरह से राइट साइड से 2 डिजिट जो है वो लेने के बाद वो 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो क्राइटेरिया है, if the number formed by rightmost 2 digit is divisible by 4, if
the rightmost, if the rightmost two digit is divisible by 4, अगर राइट मोस्ट टू डिजिट मतलब ये राइट साइड का दो डिजिट अगर डिवाइड हो जाता है 4 से, तो पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये सिर्फ राइट साइड का दो नंबर देखना है। तो यहां पे चेक करिए 80 जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 80 जो है ये 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा 4 का डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 25 है, 25 जो है ये 4 का डिविजिबल में आता है, नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 60 है, 60 4 से आता है तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इसका बात करें तो ये जो नंबर है ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जीरो है तो हम लोग ये दोनों को लेंगे, ठीक है, 20 को लेंगे और 20 को चेक करेंगे, तो यहाँ पे ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और इसी तरह से 5 का जो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो बहुत इजी है कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5, तो 5 वाला बहुत ही इजी है। लास्ट डिजिट जो मतलब वंस प्लेस का डिजिट होता है, अगर 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 5 का जो क्राइटेरिया है दैट इज लास्ट डिजिट इज 5 और 0, तो यहाँ पे 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, लास्ट डिजिट 5 और 0, इसमें 0 है, इसमें 5 है, 0 है, 0 है, इसका मतलब 5 से जो है सारा डिविजिबल चल जाएगा, ठीक है। तो ऑल विल बी डिविजिबल बाय 5। इसी तरह से 6 का, 7 का, 8 का, 9 का जो भी डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फाइंड आउट एंड यू कैन आंसर दिस बॉक्स, ओके। रेस्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट्स क्विकली आस्क, किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछें जल्दी से। Okay. Okay then, thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.